स्क्रीन शेयरिंग फास्ट हो गई, ये शेयर करके करो। Today we will discuss about the unit third of the topic of the procedure of obtaining of the patent. What is the procedure of obtaining the patent? In this case, we have already discussed the concept of the patent application, claims, principal claim, dependent claim, omnibus claims, examination of application, opposition of application, then the grant of the patent or the sealing of the patent. Sealing of the patent is the final stage of the grant of the patent. Sealing of the patent is the final stage for the grant of the patent. Section 43 deals with the grant of the patent, in which where an application of the patent has been found to be in order of the grant of the patent,
then the grant of the patent will be done, sealing of the patent will be done, or either case refused by the controller by the virtue of the power of the act, and the application has been not found for the grant of the provision of the patent. The patent shall be granted in case of the it was found suitable according to the controller of examination, and this is the case where the controller has put the obligation to publish the fact that the patent has been granted, specifications and other documents to open prior inspection. The section 47 deal the grant of the patent shall be subject to the following conditions. These are the conditions for which the grant of the patent should be done. Any machine, apparatus or article in respect of which the patent is granted, or any particle made by using the process in respect of the patent is granted, may be imported or made by in behalf of the government for purpose of its merely use. कोई भी मशीन को सारे कंडीशंस फुलफिल करने के बाद, अपोजिशंस होने के बाद, एग्जामिनेशंस होने के बाद, क्लेम्स करने के बाद, स्पेसिफिकेशन भरने के बाद पेटेंट को ग्रांट कर दिया जाता है. तो सेक्शन 47 डील्स द ग्रांट ऑफ द पेटेंट. पेटेंट को ग्रांट कर दिया जाता है ना. Any process in respect of which the patent granted may be used on behalf of the government or for the purpose merely of its own use. कोई भी प्रोसेस को पेटेंट के ग्रांट के लिए यूज किया जा सकता है. Any machine, apparatus or article, the patent is granted, made by the use the process in respect of which the patent is granted, may be made or used any process in respect of the patent is granted by the any person. किसी भी पर्सन को जिसने पेटेंट को एप्लीकेशन फाइल किया है, उसके एग्जामिनेशन होने के बाद, क्लेम करने के बाद, अपोजिशन होने के बाद आपको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है. ये आपको सेक्शन 47 आपको डील करता है. दिस इज नाउन एज द ग्रांट ऑफ द पेटेंट. दूसरा, इन केस ऑफ द मेडिसिन. हाँ बोलिए सर. ये प्रोसीजर पढ़ रहे हैं हम, ये क्या ये पेटेंटेबल पढ़ रहे हैं हम, पेटेंटेबल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? नहीं, ये आपको ग्रांट ऑफ द पेटेंट है. सेक्शन कौन सा डील करता है पेटेंट को ग्रांट करने का? सर प्रोसीजर है ना ये तो सारा. हाँ, कौन सी यूनिट चल रही है सर? यूनिट 3. आपका यूनिट 3 चल रहा है. सिलेबस आपके पास है क्लियर? यस सर. 5 यूनिट है ना सर? पिछले में आपको अपोजिशन ऑफ द एप्लीकेशन बताया गया था. तो अपोजिशन किस किस ग्रांट में पेटेंट का आपका होगा, है ना? ठीक है सर. सर कोई सिलेबस चेंज हुआ है क्या सर? नहीं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है. ओके सर. कितनी यूनिट करा दी सर आपने? 2 यूनिट. आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, यूनिट 5 कंप्लीट हो गया. ये यूनिट 3 भी आपको कंप्लीट हो जाएगा. उसमें स्पेसिफिकेशन बचा हुआ है और ये ग्रांट ऑफ पेटेंट बचा हुआ है. सर इसको भेज दिया आपने ग्रुप में, ये वाला हाँ, यूनिट 3 का? ये भेजा हुआ है. जो भी यहाँ पर मैं ऊपर मैं डिस्प्ले करता हूँ, पहले वो आपको चला जाता है, व्हाट्सएप में चला जाता है, फिर हमारे पास ये आता है. तो ये सारा आपको भेजा हुआ है. सर वो ट्रिप क्या होता है सर? ट्रिप, TRIPS, इसका आजकल चल रहा है सर. हाँ, तो वही तो है ट्रिप्स एक्ट. मैंने बताया नहीं था आपको? सेक्शन यूनिट 2 में आपको बताया हुआ था. यस सर.
ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द, वो आपको ट्रिप्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सर इसका क्या होता है सर इसमें? उसमें ट्रीटी होती है, कई कंट्री का जो है मिल करके कन्वेंशन किया जाता है और उसमें ट्रीटी होती है। बार्क समिट जैसे होता है, ब्रिक समिट होता है, सार्क समिट होता है। तो सार्क समिट में जा करके जो देश वहां पे एकत्रित होते हैं, वही सारे देश मिल करके ये संधि करते हैं कि हम लोग के आपस में जो है बिजनेस किया जाएगा। तो बिजनेस किया जाएगा तो वही पेटेंट की वहां पर जो है ट्रीटी होती है, कौन कौन सा जो है बिजनेस होगा। तो वही आपको ट्रिप्स वही है। ट्रिप्स में भी ट्रिप्स एग्रीमेंट आपको बताया तो गया था। वो ट्रिप्स एग्रीमेंट में आपको नया ओके सर। आपको मैं ट्रिप्स एग्रीमेंट में आपको दिखा देता हूँ। ट्रिप्स एग्रीमेंट वो आपको क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई हड़बड़ी हमें है नहीं। जी सर, वो ऐसे बहुत सिलेबस आ गए हम। हाँ, सिलेबस बहुत आगे, हम आगे जा रहे हैं। वो कई कंट्रियों के बीच में आपको वो संधि होती है, वही आपको ट्रिप्स एग्रीमेंट है। सर किस बेसिस पे होती है संधि सर, क्या क्या होता है इसमें? जिसके जिसके पास है वो अपना रखते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, और स्पेस के क्षेत्र में, स्पेस में वो करते हैं, मिसाइल में करते हैं, है ना, मिसाइल में वो करते हैं कि हमारे पास ये मिसाइल का सिस्टम है, आप भी इसको ले लो। तो यही जी होता सर। है, यही होता है उसमें। ओके सर। और सर ये जो आप इस चैप्टर यूनिट 3 सर कब से स्टार्ट कर दिया आपने सर? यूनिट 3 अब खत्म होने वाला है, वही तो मैं आपको बता रहा था। इसीलिए तो मैं आपको आपको क्लियर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपको। सर यूनिट 3 के इसी में है क्या सर, इसी पीडीएफ में है क्या सारे नोट्स? हाँ हाँ, उसी पीडीएफ में सारे नोट्स हैं। इसी वाली में ही? हाँ सर आपने मेरे को भेजी थी ये वाली पीडीएफ? हाँ, सारा पीडीएफ चला गया है। मैं एक पीडीएफ बार देख लेता। नहीं है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, वही मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे आपके जो गेट एग्रीमेंट है। गेट एग्रीमेंट भी उसको बोलते हैं, ट्रिप्स को गेट एग्रीमेंट जी भी। सर, वो एक बार बता दीजिए तो अच्छा होता सर। यही तो है ट्रिप्स अमेंडमेंट। जी सर। इंडियन पेटेंट 1856 में प्रोविजन ऑफ द ट्रिप्स अमेंडमेंट, वो कन्वेंशन एक ट्रीटी होता है। ट्रीटी में ये पेटेंट एक्ट बना था। उसमें फिर एग्रीमेंट और ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स, यही तो है जी ना। सर। तो इसमें कई कंट्रियों के बीच में मिलके वो संधि होता है, संधि बन के वो एक्ट बनता है। तो एक्ट 99 में आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को ऐड किया गया था। तो यही तो उसमें है, ट्रिप्स का एग्रीमेंट यही तो है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ये सारे प्रोविजन किए गए हैं। पेटेंट अमेंडमेंट 2000 हुआ था। इसमें न्यू एक्ट जो है ट्रिप्स के थ्रू जो है आपको
किया गया था। तो ट्रिप्स मिल करके जो एक्ट है, एक्ट बनाते हैं, साइलेंस फ्यूचर ऑफ द डिजाइन एक्ट। ये डिजाइन एक्ट का क्या क्या हुआ था, तो यही सारे तो होते हैं उसमें। ओके सर। ट्रिप्स ये मिल गए ना सारे, जितने भी जी सर। आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पहले उसमें नहीं था। सर ये कौन सी वाली पीडीएफ है सर? ये एक बार आप शुरू से ये दिखा सकते हैं इस वाली पीडीएफ टू को? का है, यूनिट 2 का है। यूनिट 2 ही ये तो पहले मैंने शुरू किया था। यूनिट 2 ही सबसे पहले मैंने आपको शुरू किया था। तो एग्रीमेंट जो आपको डिफरेंट कंट्री का होता है, तो उसमें एग्रीमेंट जो है सारे कंट्री मिल करके वो एग्रीमेंट करते हैं, वो एक्ट रेडी करते हैं। तो इसी तरह ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1919 ये रेडी किया गया था, है ना। पेटेंट अमेंडमेंट 1919 ये आपको एक्ट रेडी किया था सारे कंट्री मिल करके। सर फिर मेरे को तो ये पीडीएफ मिल ही नहीं रही। ये आपको इंडियन पेटेंट एक्ट पोस्ट ट्रिप्स अमेंडमेंट, ये आपको पहला पेटेंट जो आपको प्रोमोट हुआ था 1856 में हुआ था। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में भी मिला। द एक्ट वाज फॉर्मली कंपाइंड विद द प्रोविजन ऑफ द ट्रिप्स। यही यही तो कह रहा है सारे जो ट्रिप्स के साथ में। द मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट वाज 2005 में हुआ था। इसके पहले 2000 में हुआ था, फिर 2003 में हुआ था, है ना। तो जी सर। आपको सारे कंट्री का मिल करके बैठक होती है, और उसमें नए नए जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। जैसे इंडिया कोई टेक्नोलॉजी बना लिया तो वो बांग्लादेश के साथ में शेयर करेगा, सिक्किम के साथ में शेयर करेगा। दूसरे कंट्री जो छोटे छोटे कंट्री हैं, श्रीलंका का आएगा तो श्रीलंका को शेयर करेगा, हर एक क्षेत्र में। तो वही आपको ट्रीटी होती है, कैसे जो है क्या आपको कैसे शेयर किया जाएगा। दो कंट्री का मिलने का मतलब ही है कि आपस में बिजनेस का शेयर करना, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना, यही जो है मेन मुद्दा रहता है। कोई कंट्री जैसे जर्मनी का कोई आता है यहाँ पर, तो मेन मुद्दा यही रहता है जो नया टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाए और बिजनेस को जो है कैसे बढ़ाया जाए। दो देशों के बीच में आपको बिजनेस को आपको कैसे बढ़ाया जाए, तो वही दोनों के बीच में संधि होती है। और ये जो आपको दिखा रहा है तो पेटेंट एक्ट 1970, ये एक्ट आपको दिखा रहा है। पेटेंट एक्ट में आपको क्या किया गया है, तो ये आपको दिखाया गया है। तो मैं अभी नहीं तो दोबारा फिर जो है रिवाइज कराऊंगा एक एक करके, जब तक जो है टाइम रहेगा तब तक आपको रिवाइज कराऊंगा। है ना। ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना पेटेंट एक्ट 1970 का। तो इसी तरह सभी की ट्रीटी हुई थी। वो ट्रिप्स का मतलब है एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो एग्रीमेंट होता है सारे मिलकर के उसको एग्रीमेंट करते हैं, और उसमें सारे कंट्री मिलकर के एक्ट बनाते हैं। तो उसी तरह पेटेंट एक्ट अमेंडमेंट 1999 में किया गया था, वो आपको किया गया था, है ना। तो उसमें जो 1970 में जो एक्ट बना था उसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको रजिस्ट्रेबल नहीं था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रजिस्टर नहीं किया गया था, तो उसको 99 में आपको इंक्लूड किया गया, है ना। पेटेंट अमेंडमेंट बनाया गया, पेटेंट को अमेंडमेंट किया गया और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को इंक्लूड किया गया। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1919 आपको इंक्लूड किया गया, और उसमें ये आपके साइलेंट फीचर्स आपको उसमें दिया हुआ है। प्रोविजन ऑफ डिफिनेशन ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारे चीज दिया गया। गुड्स, प्रोड्यूसर, पैकेजेज, है ना। सर हाँ बताइए। सर ये वाली पीडीएफ तो मुझे मिल ही नहीं रही सर। नहीं होगी, सारी दी हुई है, सबसे पहला ही तो पीडीएफ है ये। सर एक बार मुझे सेंड कर दो आप, ये व्हाट्सअप कर दो सर अभी।
मैं पढ़ लूंगा साथ के ये साथ। ये व्हाट्सएप नहीं होगा, ये आपका सॉफ्ट कॉपी है, आपको मेल हो जाएगा। जिसको भी चाहिए आप अपना मेल आईडी कर देंगे, भेज देंगे, उसको मेल चला जाएगा, है कि नहीं। तो ठीक है सर। तो ये आपको पेटेंट अमेंडमेंट 1999 में हुआ था। पेटेंट अमेंडमेंट 1900 आपको हुआ था, जिसमें इंडिया डिड नॉट हैव ए स्पेसिफिक लॉ। इंडिया के पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था, है ना। तो आपको पेटेंटिंग जो है टर्मरिक, नीम, बासमती वगैरह को आपको फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में लाया गया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रिलेटेड इसमें लॉ नहीं था, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को ये लॉ बनाया गया। पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 1999 में आपको बनाया गया, और ये एक्ट में ये सारे टर्म आपको इंक्लूड किया गया, है ना। और ये सारे उसके आपके दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जो है, उसमें आपको क्या क्या मेन फीचर्स हैं वो आपको बताया गया। प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्रार फॉर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, 2 पार्ट्स ए एंड पार्ट बी, है ना। ये विल कंटेन registered geographical indication part will contain particulars of the register authorized user, registration of geographical indication of goods in specified class, provision of registration of the certain geographical indication, ये सारा आपको प्रोवाइड किया गया। ये आपको समरी बिल्कुल फिट होकर के जो उसमें आपको मेन मेन फीचर्स है वो आपको डिजाइन एक्ट में ये आपको प्रोवाइड किया गया। कंपल्सरी एडवर्टाइजमेंट फॉर एक्सेप्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एप्लीकेशन फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन किया गया था। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज्ड यूजर्स, रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड प्रोवाइडिंग प्रोविजंस फॉर टेकिंग इन्फ्रिंजमेंट एक्शंस, ये किया गया है। प्रोविजन ऑफ हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द नोटिफाइड गुड्स किया गया है। और दूसरा अपील फॉर अगेंस्ट रजिस्टर्ड डिसीजन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आपको किया गया। फिर उसके बाद पेटेंट अमेंडमेंट 2000 लाया गया। ये सारे कंट्री मिल करके ये पेटेंट अमेंडमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर दिया था न्यूयॉर्क इम्प्लाई अकॉर्डिंग ट्रिप्स, ट्रिप्स में सभी कंट्री मिल करके इंडस्ट्रियल डिजाइन को आपको ये चल रहा है। तो ये सारे कंट्री मिल करके ट्रिप्स में वही करते हैं कि ये चीजें नहीं हो रही है उसमें अमेंडमेंट करो, ये चीजें नहीं हो रही है वो अमेंडमेंट करो। तो जो जो आपको डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को सेल करता है, अपने जो राइट्स हैं तो वही तो सेल करता है, और यही इसका मेन फीचर है। ये डिजाइन एक्ट जो है 2000 का आपको यहाँ पर दिखाया गया है, 17 दिया हुआ है। फिर पेटेंट अमेंडमेंट 2002 आपको लाया गया था। 2002 में आपके जो साइलेंट फीचर हैं, है ना। 2002 में इंडिया पेटेंट लॉ इन ट्यून विद द ट्रिप एग्रीमेंट, यहाँ देखिए आपको दे रहा है ट्रिप एग्रीमेंट जो उसमें पहले वाला ही साइलेंट, पेज दिख रहा है सर। ये साइलेंट फीचर है। सर पेज दिख नहीं रहा, पहले वाला ही पेज दिख रहा है। सर पहले वाला ही दिख रहा है बस पेज। ओके माय चाइल्ड। हेलो चंदन, हाँ भाई। यार ये पीडीएफ भेज देगा मेरे को, ये वाली तरफ पड़ी हो तो। मेरे को खुद नहीं मिल रहा भाई। सर शायद आपने भेजी नहीं है ये सर, ये वाली पीडीएफ ये है नहीं, हाँ व्हाट्सएप पर। ये तो है ना ये हाँ। सर शायद आपने पीडीएफ भेजी नहीं है ये वाली। तो इसमें सारे जितने भी यूनिट 2 का एक एक करके आपको अमेंडमेंट, पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002, है ना। देखिए आपको जो असाइनमेंट दिया गया है, असाइनमेंट में यही क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब पेटेंट अमेंडमेंट ऑफ 2002।
और वही पेटेंट अमेंडमेंट 2002 क्लियर कट आपको लिखा गया है। पेटेंट अमेंडमेंट 2002 में क्या क्या है, कहां पर हुआ है, क्या क्या चीजें लाई गई हैं, साइलेंट फीचर्स सारे उसमें आपको 12 लिए गए। डिस्क्राइब पेटेंट अमेंडमेंट 2005, पेटेंट अमेंडमेंट 2005 के सारे आपको दिए गए। ये आप उसको क्लियर करो कि भाई आपके पास है नहीं है। आप नहीं तो ईमेल आईडी, जिस बच्चे के पास नहीं है अपना ईमेल आईडी भेजिए, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। ये आपको नहीं हुआ तो आप कहीं से नहीं कर पाएंगे, बुक अवेलेबल ही नहीं है। मैं आपको भी एक दिन बताया था, कॉर्निश बुक कहीं मिल नहीं रही है। कॉर्निश की बुक, बेरी सुकमैन की बुक, वो आपको $970 की है। तो वो आपको एक्लोन की लाइब्रेरी में भी नहीं है। बिरियान की बुक वो आपको वहां पर भी, वो एक्लोन की सर किसकी बुक लेनी है सर? मैं अभी डाउनलोड करता हूँ, बताओ आप। तो सर किसकी करनी है सर? नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं है सर अवेलेबल हो जाती है, आप बताइए तो मैं डाउनलोड करता हूँ अभी। तो आप डाउनलोड कर लेना। सिलेबस में जो जो दिया हुआ है आप उसको डाउनलोड कर लेना। वो जो ओरिजिनल बुक है, नहीं सर, बुक की कह रहा हूँ। बुक सर कौन सी बुक थी, नाम बता दीजिए एक बार। वो तो सिलेबस में आपको दिया हुआ है। सिलेबस में आपको दिया हुआ है, ब्रियान सी रीड दिया हुआ है, ब्रियान सी रीड दिया हुआ है, कॉर्निश की दिया हुआ है। ये बुक आपको अवेलेबल ही नहीं है, लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, बहुत महंगी बुक है। तो और उसमें भी आपको क्लियर कट आपको नहीं दिया हुआ है। आपको जो ये नोट्स आपको दिए गए हैं, क्लियर कट आपको बताया गया है। आपको नोट जो बनाया गया है सारा एकदम बिल्कुल जो है आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है ना। तो यहां से आपको पेटेंट एक्ट शुरू होते हैं। इंडियन पेटेंट एक्ट पोस्ट ट्रिप्स अमेंडमेंट यहां से आपको शुरू होता है 1970। ये आपको पेटेंट एक्ट 1970 है। पहला इंडियन पेटेंट लॉ 1856 में आया था, और न्यू पेटेंट लॉ जो इंडिपेंडेंस के बाद जो बना है 1970 में बना है। ये प्रोविजन ऑफ ट्रिप्स के अकॉर्डिंग जो है आपको 1970 का अमेंडमेंट एक्ट, यही पेटेंट एक्ट है 1970। इसी की जो है आपको डिटेल से दिया हुआ है। इंडिया बाद में पेरिस कन्वेंशन का भी आपको मेंबर बना, पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी का भी बना, बुडापेस्ट टीटी का भी मेंबर बना था। जो आप जो कह रहे हैं ना ट्रिप एग्रीमेंट, तो पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी, बुडापेस्ट टीटी, पेरिस कन्वेंशन का मेंबर इंडिया आपको बना हुआ था, है ना। तो ये नोट्स ऑलरेडी सबको पहले दे दिया गया है। पहले आप हो सकता है ध्यान से उसको रखे नहीं है, तो आप जिस बच्चों के पास नहीं है आप ईमेल करें, आप मेल आईडी लिखें, आपको उनको भेज दिया जाएगा। और आप इसका प्रिंट आउट ले लें और तभी काम होगा। असाइनमेंट भी आपको दे दिया गया है। असाइनमेंट पहले 2 असाइनमेंट दिया गया था, और वही उसमें 2 असाइनमेंट में सेशनल फर्स्ट का और सेशनल सेकंड का सिलेबस कवर किया गया था। फिर बाद में इन्होंने बोला कि यूनिट वाइज असाइनमेंट दीजिए, तो उसी को ब्रेक करके यूनिट वाइज असाइनमेंट आपको दे दिया गया है। और ये कह रहे हैं कि वो असाइनमेंट के नंबर लगाने हैं, एमसीक्यू के नंबर लगाने हैं, ये लगाने हैं, वो लगाने हैं। वो आप लोग के पास असाइनमेंट नोटिस गया कब हुआ। देने सर? असाइनमेंट आप जमा कर दीजिए। मैं तो पहले दिन ही जो है असाइनमेंट आपको लॉन्च कर दिया था। तो सर आप, यूनिट वाइज आप एक बार और दे दीजिए। मेरा सर डाटा खत्म हो गया सारा, मतलब वो सारा डिलीट हो गया गलती से। हाँ तो एक बार और आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। फिर से ग्रुप में मैं उस असाइनमेंट को डाल देता हूँ। वो 5वें असाइनमेंट आपको 5 यूनिट का अलग। सर एक सबने, सारी टीचरों ने एक एक असाइनमेंट दिया है सर। एक असाइनमेंट दे दीजिए, एक एक बस फिलहाल। मैं पूरा ही आपको जितने असाइनमेंट है सारा ही मैं दे दिया था। आप उसको अपने कॉन्वीनियंट के अनुसार आप उसको बनाइए और उसको सबमिट कीजिए। मैं तो पूरा ही 5 असाइनमेंट आपको डाल दिया है। वो तो
एक असाइनमेंट बनाते हैं, वो डालते हैं, मैं समझ गया वो लोग नए टीचर हैं, उनको आइडिया नहीं है, मालूम नहीं है। मैं पांचों आपको डाल दिया हूँ, पांचों असाइनमेंट आपको दे दिया गया है। और तो सर रीसेंड कर देना एक बार। हाँ, फिर एक बार से उसको रीसेंड कर resend देना सर। कर देते हैं, फिर से उसको। किसी भी सर एक असाइनमेंट भेज देंगे हम आपको सॉल्व करके। हाँ हाँ, नहीं एक असाइनमेंट नहीं, वो 5 असाइनमेंट करके दिया हुआ है। मैं सर आपको पांचों एक साथ तब भी नहीं सर, जब बाकी टीचर्स मांगेंगे तब हम दूसरा दे देंगे सर। 500 कैसे देंगे सर एक साथ? अभी तो सर 5 यूनिट हुए भी नहीं है। उन्होंने जो है फॉर्मेट बना दिया है, कह रहा है कि 5 को हर एक लड़के का ये भर के हमें जैसे जैसे असाइनमेंट आ रहा है वो हमें कॉलेज भेज दीजिए। तो ठीक है सर। इसमें वो कुछ बार्गेनिंग संभव ही नहीं है, वो सारा तो डाटा सर कॉलेज हम मांग रहे। सर ठीक है 5 सर। यूनिट हुई थोड़ी है सर, अब हमारी यूनिट अभी कंप्लीट। नहीं नहीं, हमारा ये कहाँ कहना है, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप अपने कॉन्वीनियंस के अनुसार बनाइए। पहला असाइनमेंट जमा कीजिए, पहला असाइनमेंट जमा करने के बाद फिर दूसरा कीजिए, दूसरा करने के बाद तीसरा कीजिए, है ना। हाँ सर वो ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, पहले अभी एक दे देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा दिन। हाँ, हमारी तरफ से ये नहीं है, हमारी तरफ से आपको पांचों दे दिए गए हैं। वो 5 कह रहे हैं देने के लिए, 5 असाइनमेंट देने के लिए कह रहे हैं, 4 एमसीक्यू के लिए कह रहे हैं। तो इस वीक में भी जो है मैं एमसीक्यू आपका ले लूंगा, आईपीआर का। थर्सडे को फिर एमसीक्यू मैं आज जो है आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आपको आईपीआर के एमसीक्यू के लिए वो आपको चला जाएगा। तो वो 4 लेने के लिए कह रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आपको नोट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये ऑलरेडी है मेरे पास, ये आप लोग को प्रोवाइड किया गया, आप लोग का मिस हो गया है कहीं पे, तो ये दोबारा जो है आपको भेज दिया जाए, है ना। तो ये इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। मैं तो आपको पहले ही बोला था कि ये लेक्चर नोट्स के बिना काम ही नहीं चलेगा। ये सारा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको नीचे लिखा हुआ है, देखिए, डिस्क्राइब पेटेंट अमेंडमेंट 99, और सारा पेटेंट अमेंडमेंट 99 क्लियर कट आपको लिखा हुआ है, क्या क्या उसमें है वो सारा लिखा हुआ है। डिस्क्राइब पेटेंट अमेंडमेंट 2000 और क्लियर कट वो सारा आपको लिखा हुआ है। पेटेंट अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था, और ये सारा आपको यहाँ पर साइलेंट फीचर्स आपको सारा आपको लिखा हुआ है ना। 12-13 आपको 17 प्रोविजन थे, 17 साइलेंट फीचर्स है। तो ये सारा आपको आपको इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के साथ में आप चेक कीजिए कि कौन कौन सा जो है आपके पास जो है नहीं है, वो सारा इकट्ठा कीजिए, है ना। सारा इकट्ठा कीजिए, और अब और सारा इकट्ठा करके फिर से उसका जो है रिवीजन उसको आपको करवा देंगे। पेटेंट अमेंडमेंट का, यूनिट 2 का, यूनिट 1 का, उसका फिर से हम रिवीजन शुरू कर देंगे, है ना। तो ये आपको ट्रिप्स जो है यही है, ट्रिप्स सेगमेंट जो है आपको यही है, जो कई कंट्री मिल करके वो पेटेंट बनाते हैं, और जो पेटेंट में नहीं है आपस में लेन देन करते हैं। सार्क मीटिंग होती है, सार्क मीटिंग में यही होता है, सार्क के देशों की मीटिंग होती है। सार्क के देशों की मीटिंग में सारे वो ट्रीटी करके साइन करते हैं कि आपस में एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, है ना, बिजनेस करेंगे जी सर। आपस में एक दूसरे का। तो यही चीजें होती हैं। आपको जो जो प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो क्लियर किया जाता है कि भाई किसके पास जो है, हमारे पास स्पेस की टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, तो कौन मिसाइल लेगा, कौन जो है स्पेस का लेगा, वही जो है आपस में एक दूसरे को जो है क्लियर करी जाती है कि आपस में कौन ड्रग लेगा, इसी का जो है आपस में लेन देन होता है। तो उसके बदले में वो उसका मनी लेते हैं, मनी गेन करते हैं। आप कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे, जबकि वो मनी देगा तभी तो ट्रांसफर करेंगे।
तो यस सर, यस सर। सर अटेंडेंस कर लीजिए सर, वरना क्लास एग्जिट हो जाएगी। हाँ हाँ, अटेंडेंस आपका कर देती हूँ। आकाश पवार जी 03, अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह जी 08, हिमांशु जी 17, हृदय जी 19, कार्तिक जी 24, कौशल जी 25, पवन जी 30, राहुल जी 32, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54, शेखर जी 41, जैनेश चौहान जी 22, जितेंद्र राणा जी 23, नंदिनी गुज्जर जी 29। जो जो अटेंड हुए हैं उनका मैं फिर से नाम बोल देता हूँ। आकाश पवार जी 03, अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह जी 08, हिमांशु जी 17, हृदय जी 19, कार्तिक जी 24, कौशल जी 25, पवन नेगी जी 30, राहुल जी 32, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54, शेखर जी 41, जैनेश चौहान जी 22, जितेंद्र राणा जी 23 और नंदनी गुज्जर जी 29। ये सारे आपके 15 पार्टिसिपेंट आपके आए हुए हैं, ये सभी के अटेंडेंस बन गए, है ना। तो ये जो आपको यूनिट 2 का आपको पेटेंट अमेंडमेंट था, सब उसमें आपको क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा चीज उसमें शामिल किया गया। इसमें आपको दिया साइलेंट फीचर आपको दिया हुआ है कि ये चीजें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको इसमें नहीं थी, वो इसमें लाया गया है। ये चीजें इसमें आपको अमेंडमेंट का मतलब ही है कि संशोधन, संविधान में संशोधन, जो पेटेंट जो संशोधन था 1970 का, उसको जो है संशोधन किया गया और नाम भी दिया गया है उसमें आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1909। इसमें साफ किया गया है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पहले नहीं होता था, नॉट रजिस्ट्रेबल इन इंडिया, absence of the statutory protection, पहले नहीं होता था। पेटेंटिंग ऑफ द टर्मरिक, नीम, बासमती, ये सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में आते हैं जो कि लोकली इंडिया में होते हैं और उसका जो है पेटेंट पहले नहीं होता था। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार जो है आपको सभी कंट्री का आपको मिला करके, है ना, तो उसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कंट्री ऑफ ओरिजिन का आपको लिया गया कि भाई ये सारे चीज, नीम वगैरह जो है इंडियन सबस्टांस है, टर्मरिक, हल्दी वगैरह जो है आपको, बासमती राइस जो है आपको इंडियन सबस्टांस है, तो इसका पेटेंट आपको इंडिया के पास रहेगा। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स जो है आपको लाया गया, है ना। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स जो है आपको पेटेंट में लाया गया, ये आपको 99 का पेटेंट में आपको लाया गया, है ना। और कंट्रोलर डिजाइन ट्रेडमार्क, ये आपको लेजिस्लेशन बनाया गया कि ये सारी चीजें आपको लाया गया। तो
इसमें आपको साइलेंट फीचर आपको दिए हैं। प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए रजिस्टर फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के जो भी पार्ट्स हैं उनका जो है रजिस्टर मेंटेन होगा, है ना। दो पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स होगा, आपको रजिस्टर रखा जाएगा। पार्ट ए में विल कंटेन ऑल रजिस्टर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। पार्ट ए में सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको रहेंगे। पार्ट बी विल कंटेन पार्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्टर ऑथराइज्ड यूजर। पार्ट बी में जो जो उसके रजिस्टर यूजर हैं आपका उसका नाम रहेगा। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आपको दो पार्ट में आपको रजिस्टर बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। पार्ट ए में आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का नाम रहेगा और पार्ट बी में ऑथराइज्ड यूजर रहेगा, है ना। 3 नंबर में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स इन स्पेसिफाइड क्लासेस। स्पेसिफाइड क्लासेस में आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्ट्रेशन होगा। स्पेसिफाइड क्लास में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आपको स्पेसिफाइड क्लास होगा। प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। सर्टन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आपको रजिस्ट्रेशन होगा। प्रोविजन ऑफ फ्रेमिंग ऑफ रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, इट कंटेंट्स एंड मैटर्स रिलेटिंग टू सब्सटेंशियल एग्जामिनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एप्लीकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, इट्स कंटेंट होगा। ये सारा आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड जितनी धाराएं थी, जितना भी रूल था, आपको अमेंडमेंट 1999 में आपको लाया गया है ना। तो ये आप जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड जितने भी 14 रूल था, 14 रूल का देखिए सारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको इसमें किया गया है ना। पेटेंट अमेंडमेंट ऑफ 99 ये आपको यहाँ पर आपको किया गया है। तो इसके पहले सबसे पहला आपको पेटेंट 1970 में बना था। 1970 में आपको साइलेंट फ्यूचर, ये सारे साइलेंट फ्यूचर हैं। इन्वेंशन का डिफिनेशन प्रोवाइड किया गया 1970 में। इन्वेंशन का डिफिनेशन दिया हुआ, ये सारा आप पहले फाइल आप खोजिए, आप मोबाइल में खोजिए और जहां भी खोजिए इसको प्रिंट लीजिए, ये आपको जरूरी है। ये नॉन पेटेंटेबल